السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج شو کا آغاز کر رہے ہیں امریکہ میں کرونا کے خوف سے پھنسی ہوئی معروف اداکارہ میرا جی کے ساتھ آن لائن گفتگو سے. ہائے میرا جی. ہائے گائز. ہائے ہائے ہائے. میرا جی میری طرف سے بھی ہائے. او یہ انلیمیٹڈ گائز بھی بیٹھا ہوا ہے. جنید صاحب، سب سے پہلے تو پلیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے وہ ایچ ڈی ہے. کیوں یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آئی ایم سوری، میرے پاس اس وقت ایچ ڈی ٹی وی والا میک اپ کا سامان نہیں تھا، اس لیے میں پھر سمپل میک اپ کر کے ہی بیٹھ گئی ہوں. ویسے تو بائی بلیسنگ آف گاڈ I feel cute without makeup. ابھی یہ آپ کا سمپل میک اپ ہے، اگر آپ نے ایچ ڈی میک اپ کیا ہوتا تو پھر تو سب سے پہلی ریکویسٹ تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز ڈونٹ فلائی مائی فن. فلائی میں فن؟ میرا مذاق نہ اڑائیں. اچھا جی. Because I am alone in my hotel room and fear is touching to me. Fear is touching you? What do you mean by مجھے that? ڈر لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جنید صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو تو بات کو فوراً سمجھ لینا چاہیے. نہیں میرا جی، آپ کی انگریزی کو سمجھنے کے لیے کچھ 6 دفعہ پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے انگریزی میں. آئی ایم سوری، میں چونکہ کچھ امریکہ کا بھی فیل کر رہی ہوں ایٹماسفیئر، اس لیے میں تھوڑا سا ٹپیکل بول جاتی ہوں. آئی ایم سوری. ایک تو میرا کی انگریزی، اوپر سے امریکن میرا کی انگریزی. جنید صاحب اسے ہی کہتے ہیں نا، سہاگا آن گولڈ، سہاگا اور سونے پہ سہاگا. تو بات یہ ہے کہ آئی ایم alone in my hotel room and 32 is off. بتی بجھی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. And it's horrible atmosphere. او مائی گاڈ، کاش میں امریکہ ہوتا. تاکہ ہو رہا ہو جاتا. سو جنید صاحب، آپ چونکہ پرائم منسٹر کے بڈی ہیں، یو آر بڈی آف پرائم منسٹر. How do you know this? آئی نو جنید صاحب، میں بھی پی ٹی آئی کی نائب پریزیڈنٹ رہ چکی ہوں. او خیر ہو. یہ تو انہوں نے مجھے رکھا نہیں تھا، اس لیے میں نکل گئی. تو میں ریکویسٹ کرنی چاہتی ہوں آپ سے کہ پلیز، میرا چونکہ اوور سٹے یہاں ہو گیا ہے، دیٹس وائی میرا بجٹ ختم ہو گیا ہے. دیٹس وائی جنید صاحب، آئی اپلیکیشن ٹو یو، یعنی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ٹیل ٹو پرائم منسٹر، پلیز سیو یور اسٹار آف کنٹری. جہاز بھیجیں فوری طور پہ، اسپیشل آ کے وہ مجھے یہاں سے لے کے جائے، کیونکہ میرے پاس بجٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. میرا جی، آپ کہہ رہی ہیں میرے پاس بجٹ ختم ہو گیا ہے؟ ہم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، آپ باربیکیو کر رہی ہیں، ککڑ اڑا رہی ہیں، یہ سب کیا ہے یہ سب؟ میرے کو قسم چکا لو، ککڑ گلی چو چکے سن. یہ کیا ایڈمٹ کر رہی ہیں آپ؟ جنید صاحب، آپ اس سے کہیں یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کے جیجا جی ککڑ چور ہیں. وہ ہمارے ایک محلے کے لڑکے نے گلی سے ککڑ پک اپ کیے تھے. ایک آدھ ککڑ پک اپ کیا تھا یا پوری پک اپ میں پک اپ کیے تھے؟ جنید صاحب، پک اپ مینز اٹھائے تھے. اچھا. اس بچے کا بھی قصور نہیں ہے. حکومت کہہ رہی تھی کہ ایوری تھنگ لاک ڈاؤن، ایوری تھنگ لاک ڈاؤن، تو وہ ککڑ گلی میں پھر رہا تھا تو اس لڑکے نے پھر ککڑ لاک ڈاؤن کر دیا. پھر ہم نے اس لڑکے سے فری میں بائی کر لیا. اور پھر نوید نے مجھے کہا کہ میرا پلیز کل دا منٹ اینڈ کوک اٹ. کل دا منٹ؟ منٹ مارتے نو پکا پھٹا. کمال انگریزی ہے، کمال. Junaid, you know, English is the only tongues which come to me easily. کیا فرمایا بھلا؟ مجھے کہہ رہی ہیں کہ صرف انگریزی واحد زبان ہے جو مجھے آتی ہے. اچھا. You understand, Juni, you understand. No other tongue comes to you? Yes, I speak Urdu only for running the work. Running the work? کم چلانا سے اردو بولنی ہے.
मीरा जी आप ये तो बताएं, आप अमेरिका फिल्म बनाने के लिए गई थी? यस अमानत मून साहब, अमानत मून। आई तो मैं इधर फिल्म बनाने की वजह से थी, मगर ये कोरोना वायरस की वजह से माय फाइनेंसर इज गो टू हेयर देयर। है हेयर देयर? मेरा फाइनेंसर इधर उधर हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा मीरा जी, फिल्म तो आप पाकिस्तान में भी बना रही थी। बस अनफॉर्चुनेटली इन दैट फिल्म हुमायूं सईद gave me answered cleanly। हैं? हुमायूं सईद ने साफ जवाब दे देता। अच्छा। So for me, Corona and Humayun Saeed is same for me। डोंट वरी मीरा जी, आप मुझे लेके फिल्म बनाएं। तुम्हें लेके फिल्म तो नहीं बन सकती है, न्यारी बन सकती है। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज डोंट फ्लाई माय फन। इस वक्त आई एम इन टेंशन। यू नो माय हैंड्स एंड फुट्स आर एयर टाइट। मेरे हाथ पैर फुले ने। तो मीरा जी आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। ले। तू ज्यादा ना बोल, तू तो पूरा फुले हैं। अच्छा मीरा जी, आपने ये शिकवा भी किया है कि आपके हिस्से का काम मायरा खान को दिया जा रहा है। Yes, of course. I am more talented to him. And more acting comes to me. आपको ज्यादा एक्टिंग आती है। Oh, yes. And I am too small from Myra Khan. टू स्मॉल? Yes, बहुत छोटी हूँ। अच्छा। Yes, I only saw few springs of life. ओ खैर, बोला क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? कह रही मैंने भी जिंदगी की थोड़ी सी बहारें देखी। जुनैद आप तो जानते हो, आपके तो सामने मैं बड़ी हुई। मीरा जी, मैं 8वीं में पढ़ता था जब आपकी पहली फिल्म लगी थी। हुए उसी तो सुने नहीं सकते। तो मेरी उम्र भी बताए ना, उस वक्त मैं चाइल्ड स्टार थी। मीरा जी, अब क्यों आरा के साथ मुकाबला शुरू कर देती हैं? अभी कुछ अर्सा पहले वो टिकटॉक गर्ल्स ने शेख रशीद के साथ अपनी कॉल्स वायरल की हैं। आपने फौरन अपनी पुरानी तस्वीर उठा के शेख रशीद के साथ वो ठोक दी है मीडिया पे। जुनैद साहब, कौन सी पुरानी तस्वीर? आप देखें तो सही जरा, शेख साहब की उस तस्वीर में और ये जो नई शेख साहब की तस्वीरें हैं उनमें देखें, हेयर स्टाइल का जर्रा भी फर्क नहीं है। तो जुनैद साहब, वो टिकटॉक गर्ल्स हो या मायरा खान हो, आई डोंट हैव एनी जॉइंट। डोंट हैव एनी जॉइंट? मेरा कोई जोड़ ही नहीं। अच्छा मीरा जी, आपने एक बड़ी परेशान कुन बात की है। आपने कहा है कि आपके पास सिर्फ $300 है और पाकिस्तान वापस आने की टिकट $3000 है। तो कैसे वापस आएंगी आप? चिंची पे बैठ के। ना जनेद साहब इस तरह तो ना करो। मीरा जी वाहद इंसान है दुनिया दी जिन्हां दी इंग्लिश सानू तिन्हां नूं भी समझ आ रही है। अच्छा मीरा जी, ये पिछले दिनों आपने एक बच्चे के साथ भी एक तस्वीर शेयर की है इंस्टा पे और नीचे लिख दिया माई चाइल्ड। ये क्या चक्कर है? It is not any roundabout. It is my future planning. But इन दिनों तो मैं मूवी के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हूँ। अच्छा मीरा जी, मुझे मूवी से याद आया, आपने ये भी कहा है कि ऋषि कपूर साहब आपके साथ काम करने के फिल्म में ख्वाहिशमंद थे। ये क्या मामला है? और यस, आप यकीन माने जुनैद, ऋषि जी ने कई दफा कहा था कि मीरा मैं आपके साथ फिल्म में हीरो आना चाहता हूँ। लेकिन आपने उनकी जिंदगी में ये बात क्यों नहीं की? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि ये राज तुमने सीक्रेट ही रहने देना है। अच्छा। जब फिल्म लगेगी तो फिर लोगों को पता चलेगा, अदरवाइज इसको राज ही रहना चाहिए। तो कौन सी फिल्म बनाना चाहते थे वो आपके साथ? अब चूंकि वो जा चुके हैं इसलिए मैं राज फाश कर रही हूँ। वो मेरे साथ मिलके तो बॉबी 2 बनाना चाहते थे। तो बॉबी 2 में आप बॉबी की वालदा का रोल प्ले करना चाहती थी? जुनैद साहब, मैनू लगदा या ते तुहाडियां अखां च कुकरे पए ने ते या जेडे टीवी ते मैं आ रही हैं इहदे च कुकरे पए ने। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आपका HD टीवी है कि नहीं।
जुनैद साहब वो मुझे फिल्म में हीरोइन लेना चाहती थी। अच्छा हाँ जी फिल्म दी हीरोइन भी है तो महल्ले च कमेटियां भी पाउंदी पार्ट टाइम VCR भी किराए ते दिंदी महल्लेदार कहंदे ओ बाजी बॉबी कोलों VCR ले आवो किराए ते मून उतो चढ़न वाला है जून तेरा क्यों हो गया सफेद खून जे ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਨ ਮਾਨਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ क्यों नहीं मानता जोनी प्लीज आइंदा मुझे HD TV पे बुलाना मैंने सादे TV पे नहीं आना। और छोड़े मीरा जी HD TV को, जिस तरह की इस वक्त आप लग रही हैं ना, ऐसी तस्वीरें अखबारात में सिर्फ इस कैप्शन के साथ शाया होती हैं, बिल आखिर मुख्तारा बिच्छू पुलिस मुकाबले में मारा गया। आई एम सॉरी ये कौन है स्टूपिड मुख्तारा बिच्छू? जुनेद मैंने तो मुख्तारा माई का रोल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उसके साथ माई लगता है, हालांकि ही इज यंग लेडी। और छड्डो मीरा जी इन्हां फिल्मां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਯਕੀਨ मेरे बगैर बोर तू मेरे नाल लूडो खेडनी है। मीरा जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਣਾ ਜੇ? तेरा फिटे मुंह वापस ही आना है। अमरीका ते अगे तो कोई मुल्क भी नहीं कि बंदा आगे टुर जावे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज भी अखबारात में ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहारों में आपको कोई ना कोई ज़रूर ऐसा ऐड नज़र आता है कि एक बेवा या तलाक याफ्ता खातून के लिए रिश्ता दरकार है, माकूल बैंक बैलेंस, ज़ाती जायदाद। यानी आप देखें कि उस खातून के साथ रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं बेवा के साथ जिसके पास बैंक बैलेंस है। अच्छा अजीजी भाईजान द ग्रेट, आज मैं आपके साथ एक लम्हा फिक्रिया डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जाहिर है पहले कौन सा तुम तरनजोत सिंह के लतीफे सुनाते हो? बात करना भी मुश्किल है तुम्हारे जी साथ। मुश्किल क्यों है? मैंने मुंह पे हाथ रखा हुआ है। बोले बिस्मिल्लाह। नहीं, जो पहले आपने बोलना है ना वो फरमाए। नहीं मैं तो फरमाता ही रहता हूँ। अच्छा लम्हा फिक्रिया, इसका ख्याल मुझे इसलिए आया है, हम ये मौजू पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पिछले इतवार के रोज एक उर्दू जो अखबार है उसका जो संडे मैगजीन आता है उसमें एक सर्वे शाया हुआ है और वो सर्वे जो है वो मुल्क भर में किया गया है और तहरीरी सवालनामा भेज के उसके जवाब जो है वो उनको मसूल करके फिर उन्होंने शाया किया है। बहुत ही अफसोसनाक है उस सर्वे के नताइज। वो सर्वे किया गया है बेवा या तलाक याफ्ता खवातीन से शादी के रुझान के हवाले से। यानी अंदाजा करें कि उसमें जो सर्वे है उसमें 91% वालिदैन ने साफ जवाब दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी बेवा या तलाक याफ्ता मुतल्लिका को हम अपनी बहू बना के लेके आए। लेकिन नौजवानों से पूछा गया है तो उनमें 78% ने कहा है कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि जवाब देते हुए फिर वो झिझक गए होंगे। जवाब देने वालों की जो तादाद है वो मेरा ख्याल है कि इससे कहीं ज़्यादा होगी। ये हमारा माशरा जो है मजमूई तौर पर पता नहीं ये मतलब कब सुधरेगा, कब हमारी सोच तब्दील होगी। पूरी दुनिया से हम कल्चर ले लेके अडॉप्ट करने के आदी हुए हैं, फलां भी है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं पूरी दुनिया में, मतलब हम मगरबी माशरे को कोसते रहते हैं, वहाँ पे तलाक याफ्ता या बेवा खवातीन की ज़िंदगी कभी नहीं हमने देखी कि इस तरह अजाब बना दी जाए। हम बना देते, हमने पता नहीं एक अजीबो गरीब सा तसव्वुर कायम कर लिया हुआ है और उस तसव्वुर को तब्दील करने के लिए किसी तरह तैयार, बल्कि वो तसव्वुर जो है मजीद बिगड़ता जा रहा है। नहीं मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अवेयरनेस आएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। ये मैं इंशाल्लाह दुआ गो भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद है मुझे बहुत ज्यादा। पता क्यों? पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ये हम सोच भी नहीं थे सकते, वो अब होनी शुरू हो गई है। मसलन वो क्या पहले कहा करते थे कि कुंड चुके आते नकाने या पाँव बारह, लतीफा बना हुआ ना जी का कोई रिश्ते का पता ही नहीं था होता, लड़के को लड़की कौन है, कैसी है, किस तरह की है। इवन मुझे याद है कि फोटो तक बच्ची की देखना या लेना मायूब समझा जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फोटो शुरू हुई। अब तो बच्चों को जैसे इस्लाम में है, ये इस्लाम में है, बच्चे देख सकते जो हैं वो देखें, अंडरस्टैंड आपस में बात कर सकते हैं। तो इसी तरह मतलब तलाक याफ्ता या बेवा खवातीन से शादी करना
रसूल करीम की सुन्नत है, हम क्यों भूल जाते हैं? हाँ जी। आप उसको सिर्फ यही एक चीज ना ज़हन में बिठाएं कि ये तलाक याफ्ता है या बेवा है, उसके आप ये देखें कि वो अगर बच्ची आपको पसंद है तो ये तो कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि कोई इसमें कोई ये खामी या कोई गलती तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन हमने खामी क्या, हमने एक बहुत बड़ा धब्बा बना दिया अपने माशरे में। सर ये इस खित्ते का प्रॉब्लम है, हमारे हमसाया मुल्क में इससे भी बुरे हालात हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल ये दुरुस्त कहा इसने, और शायद जिंदगी में पहली बार इसने कोई दुरुस्त बात की कि ये इस खित्ते का प्रॉब्लम है। अरब मुल्कों में भी ये कल्चर नहीं है। अरब मुल्कों में, मतलब हम अंग्रेज की बात क्यों करें, मुसलमान मुल्कों की बात कर लो, सबसे बुरा हाल हमारा ही है। और जाहिर है कि वो इस खित्ते की तकसीम के बाद हमें विरसे में ये सोच मिली है शायद। अब देखो, एक तरफ तो आप खातून के जो अक़द सानी है बेवा की या तलाक याफ्ता की, उसको हर तरह से डिस्करेज करते हैं, खामोशी से या डंके की चोट पे करते हैं, गैरत का, इज्जत का मसला बना लेते हैं, डिस्करेज करते हैं। दूसरी तरफ अगर वो खातून अकेले रहने का फैसला कर भी लेती है कि ठीक है जी मैंने अकेला रहना है अपने बच्चों के साथ, तो भी हम उसकी जिंदगी बेचारी की अपनी गंदी सोच की वजह से, अपनी एक अजीबो गरीब सोच की वजह से अजाब बना देते हैं। उसके घर में, बेचारी के घर में कोई इलेक्ट्रिशियन भी आए तो स्कैंडल खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो हमारे दिमागों का ही फतूर है ना। और क्या, अंदाजा करो कि आज भी अखबारात में जरूरत रिश्ता के इश्तिहारों में आपको कोई ना कोई जरूर ऐसा ऐड नजर आता है कि एक बेवा या तलाक याफ्ता खातून के लिए रिश्ता दरकार है, माकूल बैंक बैलेंस, जाती जायदाद। यानी आप देखें कि उस खातून के साथ रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं बेवा के साथ जिसके पास बैंक बैलेंस है। ये अजीब हमारे में आ रहा है, अजीब मुनाफकत है। मतलब एक बेवा बेचारी जो वो क्या करे, कि एक तरफ तो अक़द सानी की इजाजत नहीं है, और दूसरी तरफ अगर वो अकेला रहती है तो अकेला रहना चाहती है तो भी माशरा इजाजत नहीं देता, तो जाए तो कहाँ जाए। और मेरा सबसे बड़ा शिकवा जो है वो माशरे से हट के ये खवातीन के हकूक के लिए जो काम करने वाली तंजीमें हैं, उनको ये मसला क्यों नजर नहीं आता। कभी मैंने किसी ऐसे मुजाहरे में ऐसा कोई प्ले कार्ड नहीं देखा कि अक़द सानी की हौसला शिकनी ना की जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, कहीं नहीं मैंने देखा। हाँ जी, बड़ी वाकई ये अहम चीज़ है। एक दफ़ा पहले भी आपने इस तरह की कोई बात की थी, ये वाकई ये दिल जो है बाकायदा हिल जाता है इस तरह की गुफ्तगू में कि जो बच्ची बेचारी को तलाक हो गई है या अल्लाह ना करे बेवा हो गई, अल्लाह पाक सब बच्चियों के सुहाग कायम, उसमें कुदरत का निजाम है, उस बेचारी का अपना क्या कसूर है। अच्छा भाईजान, ये दूसरे इसका पहलू भी देखो ना कि अगर तलाक की सूरत में भी 90% हमारे जहन में ये बदगुमानी मौजूद रहती है कि यार औरत में कोई होगा तो इसको तलाक, जी बदतमीज होएगी या नालायकी होएगी या शर्मीनी होएगी या अल्लाह माफ करे उसके जुबान दराज होगी, करैक्टर के हवाले से सोचना शुरू कर। करैक्टर से हट के भी अगर करैक्टर पर ना भी जाए तो कोई ना कोई कहते हैं, हम कहते हैं यार खातून की कोई बदजुबानी होगी, कोई इसका मिजाज ऐसा होगा, कोई मामला, तभी तो तलाक हुई। कभी बेचारी मस्कीन नहीं दिल करे जेडी 6 महीने उत्थे रही है, वो अपने टोन खावंद नु राती बूहे चुक सीट के अंदर ले गए। यानी कैरेक्टर के हवाले से भी या आदतों के हवाले से कोई बदगुमानी जो है वो मर्द के हवाले से हमारे जहन में नहीं आती, औरत के हवाले से ही आती है। अच्छा, फिर कभी औरत का, मुतल्लका औरत या कोई बेवा, उसका कभी रिश्ता डिस्कस हो भी ना आपके कुर्बो जवार में, कोई बंदा आपके रिश्तेदार में कहीं, तो फिर फौरी तौर पे पहला लफ्ज जो पहला जुमला होता है, अच्छी तरह तहकीक कर ली है ना। तहकीक क्या कर ली, एक SHO की तरह उसकी पूरी बैकग्राउंड देखते हैं। अगर इसकी निस्बत मर्द का रिश्ता हो, उसकी पहले चार शादियां 6 तलाक हुई हो, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं पता करता उसने क्यों तलाकें इतनी दी। मर्द सारे बेचारे भुगत जाते थैले दा भी तो हो ही गया ना। यार ये तुम ऐसे ही कहते, उससे पूछ के देखो हुआ कैसे था। अब तो ये अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, 4 पैसों की वजह से मरम्मत वरना तुम अगर इसकी शादी वाली तस्वीर देखो ना जो हमारे परजाई के साथ बैठा हुआ तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि कोई लड़की है उसे बांदर पालने का शौक। चलो यार, अल्लाह ताला उन लड़की वालों को इस सब्र अजीम पे अजर अजीम अता फरमाए। और इसे वैसे भाई ने खुद मुझे बताया था कि जब लड़की वाले देखने आए हैं ना तो उन्होंने पूछा मुंडा के थे, तो उन्होंने कहा जी कुकड़ियां वाली टोकरी दे, इसको
छुपा के रखा हुआ था। नहीं, वाकई सीरियसली ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हाँ जी। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये बुजुर्गों की तरफ से भी और मर्द हजरात की। ऐसे खामखा हमने अपनी सोच बना ली। अच्छा, बड़े बड़े जो रिफॉर्मिस्ट है ना, बड़े बड़े जो माशरे की इस्लाह चाहते हाँ हैं, जी। उनसे जब उनकी जाती जिंदगियों के बारे में पूछा जाए ना कि जनाब आप इसकी इजाजत भी देते हैं और आप जब तकरीर कर रहे हैं, आप जब दर्स दे रहे हैं तो इसकी हौसला अफजाई भी करते हैं कि ये करनी चाहिए, क्या आपने अपनी फैमिली में कोई खातून जो बेवा हुई है या जिसको तलाक हुई है उसके अक़द सानी के लिए आप तैयार हैं? तो उनका जवाब आए बाएं शाएं होता है, इसलिए कि हम हौसला करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब किसी घर में, अच्छा फिर हमने एक बेवा खातून को ना या किसी तलाक याफ्ता को एक गैरत का एक सिंबल सा बना के ना, इज्जत गैरत बहुत उसका सिंबल बना के ना, जैसे कोई दीवार पे लटकाने वाली तस्वीर होती है, हमारी भाभी हमारी बहू। और भैया हमारी भाभी हमारी बहू जो है वो एक इंसान है, उसको इंसान के तौर पे भी देख लो यार। ये मुआशरे को संवारने का या मुआशरे को खूबसूरत बनाने का जो एक अमल होता है ना, हाँ जी, ये उसका एक बहुत ही प्यारा और अहम हिस्सा है। अगर हम ये चाहें ना कि हमारा मुआशरा बड़ा प्यारा लगे, बड़ा खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, हाँ। बड़ा खूबसूरत लगे, हाँ जी। तो ऐसे लोग जो अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला के सिस्टम में को इस तरह की बेचारे किसी रिश्ते से महरूम हो जाते हैं या किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं या किसी और वजह से बेचारे अकेले हो जाते हैं, उनका साथ फौरन देना चाहिए। अच्छा, एक और- मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए उनको एडॉप्ट करना चाहिए, उनको मुआशरे का हिस्सा बनाना इस मसले का एक और पहलू बहुत ज्यादा तकलीफ दे, वो ये है कि अगर कोई हिम्मत कर भी ले, कोई फैमिली या कोई फर्द जो है हाँ जी। वो हिम्मत कर भी ले, तो ये शर्त आयद कर दी जाती है कि जी खातून तो कबूल है, खातून के साथ बच्चा जो है वो बच्चे नहीं कबूल नहीं है। वो बच्चा वो कहाँ लेके जाए बेचारे, ये नहीं बच्चे की वजह से उसकी जिंदगी अजाब हो जाती खराब है। हो जी, जी, जी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब अवाम में ये अदब का शौक नहीं रहा तो मीडिया बेचारा क्या करे। ठहरिए 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 एक मिनट। अब वही है ना जो सर घुसा के ड्रिल मशीन का वर्मा टाइट करते हैं। अरे मियां क्या बात कर रहे हो? जब आप लोग अदबी प्रोग्राम ही नहीं करेंगे तो कहां से नजर आएगा ये सब कुछ? नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवैये को मुख्तलिफ जावियों से देखने के लिए अक्सर हमारे शो में तशरीफ़ लाते हैं क्रॉनिक टीवी व्यूअर नाज़र मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां। आपकी बड़ी ज़रा नवाजी, लेकिन आप बड़े दिनों बाद तशरीफ़ लाए। वही आप हमें याद ही नहीं फरमाते। क्या हो गया? वरना आप कहें तो हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। नहीं हुआ क्या था, बारिशें हुई इस दफा देर बाद आए हैं। और मियां जी ये जो साहब आपके सामने बैठे हुए हैं ना, हाँ जी। इनके इख्तियारात जो हैं वो बड़े वसी हैं। आप नहीं जानते। अच्छा जी। आप लोग तो भोलपन में यहाँ बैठे होते हैं। अच्छा। हमें मालूम है ये शख्स जिस पे उंगली रखे उसे बुला लिया जाता है। अब ये हम पे क्यों नहीं उंगली रखते? उंगली दुखती है या हम दुखते हैं? आप बातें सच्ची करते हैं जनाब। माशाल्लाह, देखिए 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 किस तरह गवाही आ रही है परिंदों की तरफ से भी। गवाही तो कम से कम कोई भारी भरकम लाए। जुनेद मियां, वाकई सच में तो यही है कि जब आप कहते हैं हम आ जाते हैं, हम तो भरे बैठे होते हैं भाई। शिकायत के अंबार अंदर उलट पुलट हो रहे होते हैं। मैंने आपको 2-3 बार फोन किया है, कभी आप कह देते हैं मैं वो लक्स स्टाइल अवार्ड देख रहा हूँ, कभी कुछ आप मत 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 कहिए, ये सब बहाना है, ये सब बहाना है। ये आप गलत कह रहे हैं। वही आप अगर फोन करें हम तो उठ के नाचना शुरू कर देते हैं। यकीन कीजिए, क्योंकि मजा आ जाता है इनके साथ गुफ्तगू करते हुए। अभी तो नाचते आप नसीबो लाल के गाने पे हैं, नाम मेरे फोन पर डाल रहे हैं। वही आप भी तो नसीबों वाले ही हैं। नसीबों वाले हैं तो माशाल्लाह सारी दुनिया में नाम है। आज तो जुनेद मियां जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, जो शिकायत हैं, वो बाहर को उमड़ रही है। सिर्फ इतना कहने के लिए हाजिर हुए हैं कि कहां चला गया मीडिया मर से अदब।
भाई सारे चैनल घुमा के देख लेते हैं। आजकल कहीं हमें अहमद नदीम कासमी बैठे नजर नहीं आते, कहीं फराज नहीं मिलते, कहीं मुनीर न्याजी नजर नहीं आते, कहीं इशफाक अहमद की गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलती, भाई कहीं हमें सूफी तबस्सुम का चेहरा नजर नहीं आता, कहीं फैज अहमद फैज के अल्फाज से फैज याब नहीं होते। अरे वाह, हजूर वाला सारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अरे भाई तो क्या रुखसत हो चुके हैं, तो अब हम भी पीछे रुखसत हो जाए। कुछ तो ऐसा करो कि दोबारा फैज नजर आए, कुछ तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि अहमद नदीम कासमी जैसे कोई शख्सियत को सामने देखा जाए। मलिक साहब, अब अवाम में अदब का शौक नहीं रहा तो मीडिया बेचारा क्या करे? ठहरिए एक मिनट। अब वही है ना जो सर घुसा के ड्रिल मशीन का वर्मा टाइट करते हैं। अरे मियां क्या बात कर रहे हो? जब आप लोग अदबी प्रोग्राम ही नहीं करेंगे तो कहां से नजर आएगा ये सब कुछ? यही तो कहने के लिए आया हूं कि पहले तो जो खबरें पढ़ने वाले लोग होते थे वो ऐसे उर्दू अदब के मास्टर गिने जाते थे कि एक एक लफ्ज उनका तलफ्फुज, उनकी लफ्ज़ ऐसी कमाल की होती थी कि लोग खबरें सुन के उर्दू बोलना और लिखना सीखते थे। अब तो बच्चे देख के क्या सीखते हैं बताइए, खुद बताइए, खुद बताइए ना, आगे से हूं मत कीजिए, बताइए। क्या बताऊं, मैं मुल्जिम हूं आपका। नहीं आप बता तो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है फिर आप खुद ही बात अगर हमारी बात पे इन्होंने नाराज होना है तो हम चले जाते हैं। अरे मलिक साहब बैठिए, आपके लिए दुम्बे की कढ़ाई मंगवाई है। ऐसी बात मत कीजिए कि हम जा भी ना पाए। असल में इसको ना दुम्बे ने टक्कर मारी थी, इसको बुखार चढ़ गया था 4 दिन। इसको या दुम्बे को? नहीं, इसको। ओहो, भाई बात हो रही है अदब की। देखिए जुनैद मियां, मैं नहीं कहता कि आप अपने प्रोग्राम सियासी हवाले से मत करें, जरूर करें, जी जरूर करें, माशी हवाले से, मुआशरती हवाले से जरूर करें, मगर खुदा के वास्ते ये जो लिटरेरी प्रोग्राम यानी अदबी प्रोग्राम जो होते थे उनको भी जारी रखा जाए। सिर्फ इतनी सी दरखास्त है, और तो हमारा कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं है आपके साथ, और ना ही हम लड़ सकते हैं क्योंकि माशाल्लाह आप तो सहाफ़ी ठहरे। नहीं जी, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। जिस कौम में से अदब खत्म हो जाए, अदब खत्म हो जाता है। बहुत बहुत कमाल की बात कर दी, बड़ी बढ़िया बात किया, बढ़िया बात किया आपने। मगर ये आप अपने चैनल्स को भी बताइएगा, अपने मीडिया वालों को भी बताइएगा। इतने सारे चैनल हैं, कुछ थोड़ा सा भी अगर वक्त इन चीजों के लिए मुख्तस कर दिया जाए। मसलन हम तो यूं भी कहते हैं जी कि भाई आप अपने ये जो मुआशरती पहलू हैं ये भी उजागर करें अपने टेलीविजन के ऊपर। सिर्फ सियासत में बहस और सिर्फ हुकूमत पे तनकीद या सिर्फ मुखालफीन पे तनकीद या सिर्फ यूं कह लें कि बड़े बड़े नामवर जो लीडरान हैं इन्हीं पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। खुदा के वास्ते कुछ तस्हीह का पहलू भी मद्देनजर रखा जाए। बहुत अच्छे। और ये किसने कहा? बहुत अच्छी। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। नहीं मलिक साहब, ये आपकी बात तो दुरुस्त है कि न्यूज़ एंकर्स को या मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जो मेज़बान है बल्कि शुरकाए मेहमान है उनको तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना चाहिए अदब के हवाले से। लेकिन बहरहाल आप भी ये ज़हन में रखें कि ये न्यूज़ चैनल्स हैं, इन पे अदबी प्रोग्राम तो सूट नहीं करते ना। भाई देखिए जी, अभी आपको पकड़ लेते हैं। आपके ये न्यूज़ चैनल के ऊपर मजा भी तो पेश किया जा रहा है। मेरे जैसे 7-8 नकम्मे से कॉमेडियन बिठा के आप मजा भी बना रहे होते हैं। हाँ, तो वो मिजाज जो है वो भी करंट अफेयर्स के हवाले से होता है ना। तो भैया तब भी करंट अफेयर के हवाले से पेश कर ले। नहीं, अगर आप हमारे प्रोग्राम की बात करते हैं, हम तो वक्तन फवक्तन अदबी सेगमेंट करते हैं। वो जिसमें आप कबाड़ खाने के शुआरा यानी जख्मी और शमीम और तमन्निया बिठा के रखे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो भी करते हैं, लेकिन हम जबान के हवाले से, ज़रबुल अमसाल के हवाले से, जबान की दुरुस्ती के हवाले से कई प्रोग्राम करते हैं। भाई जो बड़े बड़े नामवर असातिज़ा हैं, खुदा के वास्ते उनको भी टेलीविजन पे बिठाएं। हमें बड़ी अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे थे तो सूफी तबस्सुम एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े उस्ताद थे। जी
ان کو باقاعدہ ریڈیو کے اوپر پروگرام پہ مجبور کیا جاتا تھا کہ یہاں بیٹھ کے بچوں کو ادب کے حوالے سے لیکچر دیجئے. اور صوفی تبسم جیسا اتنا بڑا آدمی, اتنی بڑی شخصیت, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے پروگرام کیا کرتے تھے. پھر بابا اشفاق احمد ارے ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ اس قسم کا زندگی کا فلسفہ بیان کرتے تھے کہ لوگ زندگیاں بدل لیتے تھے. اس حوالے سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را احمد ندیم قاسمی کو سننے کو بڑا جی چاہتا ہے, ہمیں اشفاق احمد کی باتیں سننے کو بڑا جی چاہتا ہے, ہمیں فراز اور فیض سننے کو بہت جی چاہتا ہے. اس لیے خدا را وہ جو چند لوگ ان کے ماننے والے یا ادب شناسا لوگ ہیں یا ادب کے چاہنے والے لوگ ہیں, ان کی بھی تو تسکین کی جائے. اب لوگوں نے تو ان شعراء کو, ان ادیبوں کو سال بعد اپنے عید شوز کے لیے مختص کر دیا ہے. ان کو عید سے پہلے بھی باہر نکالیں, ان کے بچے نہیں رونا شروع ہو جاتے کہ کیوں ابو کو لے کے جا رہے ہیں. ابو کو ٹیلی ویژن والے لے کے جا رہے ہیں, نیب والے نہیں لے کے جا رہے. نادر صاحب, آپ کی ذوق کی تسکین کے لیے ایک شعر سناؤں؟ ارشاد ارشاد. آیا طوفان سب کچھ بہا کے لے گیا. واہ 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 واہ. آیا طوفان سب کچھ بہا کے لے گیا. آگے آگے پھر بچے کچھ نہیں, پانی پانی, چاروں طرف پانی پانی. یہ ہے آدم کا حال. ہم شاعر سمجھ رہے تھے وہ 1122 والا نکلا. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پہ اب باقاعدہ دکاندار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں رمضان سے پہلے کہ بی بی جی پاجی لے لو سودا جنہ لینا جی, پھر پہلے روزے تو یہ ریٹ نہیں جی ہونا. بالکل یار یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی. ہاں عزیزی, رمضان شریف میں نیکیاں اکٹھیاں کرنی چاہیے, لوگ پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں. ہائے ہائے. اچھا جی, بات تہذیبیاں کیے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے, اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں میں سوچ رہا تھا کہ جو ہمیں کوئی بات تہذیبی نظر آتی ہے یا کوئی ایسا کام جو ہمیں ذرا آڈ لگتا ہے, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, اور میری نظر میں گزرے بھی ہیں کافی. یہ تو خیر اب بالکل ہی عام ہو گیا اگر روزہ رکھ کے سارا دن ستے رہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. ود ایکسکیوز اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے صحیح تو مائنڈ نہ کرے. روزہ جو ہے یہ چلے, صبح آپ اگر 9-10 بج بھی جاتے ہیں آپ کو سوئے ہوئے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ظہر لے اٹھو نماز پڑھو پھر سو جاؤ, اثر ویلے اٹھو نماز پڑھو پھر سو جاؤ, پھر جدو گھگو وجن لگے تو ادھر ٹانٹاں وجن لگ رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. روزہ رمضان کا مہینہ جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ اویل کرنا چاہیے. بالکل اسی حوالے سے جیسے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب روزہ کھل جائے نا تو اس کے بعد ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ روزہ تو گیا ہے کھل لاؤ فلم لو, یعنی روزہ رکھنے سے لے کے کھلنے تک کے بس نیک ہوئے ہوتے ہیں. روزہ کھلتے ہی کہتے ہیں کہ یار بس ہون تے روزہ نہیں نا ساڈا. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سارا مہینہ آپ کے لیے بڑا بابرکت, جتنی بھی زیادہ سے زیادہ, ویسے تو ساری زندگی انسان کو ایسا کردار ہی بنانا چاہیے. جیسے وہ ایک اب تو بڑا وہ عجیب سی ایک بات بھی گردش کرتی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم نے پوچھا مسلمان سے کہ رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتے, یہ نہیں کرتے, ایمانداری سے کام لینا پڑتا ہے, گالی گلوچ نہیں کرتے. جی وہ کہتے ہیں یار آپ بڑے خوش نصیب, آپ صرف ایک مہینہ یہ نہیں کرتے, ہم تو سارا سال کرتے ہیں. تو یہ ایک شرمندگی والی بات بھی گردش کر رہی ہوتی ہے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ. تو میرا مطلب ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کو اویل کرنا چاہیے, نہ کہ افطاری کے بعد سحری تک آپ بالکل بے باک ہو جائیں. اچھا ویسے ایک اور بد تہذیبی عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے مرد حضرات کی طرف سے سحری اور افطاری کے وقت. چلو عام طور پہ ویسے تو یہ عام حالات میں بھی بد تہذیبی ہے, لیکن سحری اور خاص طور پہ افطاری کے وقت معمولی سی کسی بات پہ معمولی سی کسی بات پہ آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں, اسے ٹھیک نہیں ہے, بد ذائقہ ہے, کچے ہیں, یہ فلاں, اور اس عورت کا خیال نہیں آپ ذرا برابر بھی برابر خیال نہیں کرتے جب آپ سوئے ہوتے اور وہ بیچاری کچن میں گرمی میں آپ کے لیے افطاری تیار کر رہی ہوتی ہے.
चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ एक आध दिन ही हुआ है ना, क्या हो गया? नहीं, मुझे तो वाकई अमान से इसने कहा तो हसरत से देखता है, हसरत से सुनता है कि यार बीवी को डांटा भी जा सकता है। अल्लाह को खैर मांग यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाकई ये भी बड़ी अहम चीज है कि आप सहरी और अफ्तारी की तैयारी में अगर पार्टिसिपेट करते हैं सारी फैमिली के साथ, बल्कि बच्चों को भी कहें, ये एक बड़ी मजे की चीज होती है और बड़ा प्यारा लगता है। हमारे चंद घरों में, हमारे प्यार वाले भाई बहनों में कई ऐसे घर हैं जो सारे बच्चे बीवी खामन सब लगे होते हैं, बड़ा मजा, बहुत मजा आता है। पूरे मोहल्ले की खवातीन भाईजान से आके पूछती हैं, भाईजान समोसे की नुक्कर नहीं बनती, वो कैसे अच्छी बनती है? चुटकी पर हो क्या लो जी। एक और चीज जो मैं बतानी चाह रहा था, जो डिस्कस करनी चाह रहा था गोगा जी, माफी के साथ, सहरी और अफ्तारी में ये भी देखने में आता है कि जो खोजा होता है ना, जिसको रोया नहीं होता, किसी वजह से अगर आप नहीं रख पा रहे तो वो सब तो ये आदत तेज होया होता है। क्या करो ओ करो। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये समझता हूँ कि जिसका रोजा नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि जिसका रोजा नहीं है उसको ये बाकियों को महसूस कराना चाहिए कि मुझे अफसोस है मैं नहीं रख सकता। बिल्कुल सही। चे जाए कि वो यादा तगोदौ से अफ्तारी कर रहा हो और दूजे कहें कि यार लो यार नमाज पढ़, ये आके खानी है तो वापस आनो तो सारी टेबल खाली हुई हो। ये नहीं खोजे का काम। खोजे का काम शर्मिंदा होना है या अफसुर्दा होना है। अगर आप बीमारी की वजह से या किसी और वो सेहत के हवाले से कोई ऐसा मामला है, शरई उज़र की वजह से रोजा नहीं आप रोजा रख सके, तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज में शर्म होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, ताकि अपने आप बच्चों को और बाकी फैमिली के मेंबरान को ये एहसास दिला सकें कि रोजा ना रखना अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, एक रवाज ये भी बहुत आम हो गया है कि लोग सहरी और अफ्तारी में डिशेस की तस्वीरें जो हैं वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर बड़े फख्र से लगाते हैं। वो तो पहले भी, मैं तो इसे हो छापा समझता हूँ। क्या कहते हैं कि भूखे जट कटोरा लब्बा पानी पी पिया फिरे, जबकि ये बड़ी हदीस मशहूर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि आप जब अपने घर में कोई खाना पकाएं तो ये कोशिश करें कि आपकी हंडिया की खुशबू हमसायों के घर तक ना जाए, मुबादा उनके घर में कुछ ना पका हो और उनको, उनके बच्चों को ये तकलीफ हो। तो ये तो वाकई दिखावा जो है ना जी, ये तो हर मामले में ही बड़ी बुरी बात है। और खास तौर पे ये जो खुराक के बेचारे नवे नवे रजे हुए जो है ना, वो जब मशहूरियां कर रहे होते हैं ना अपनी डिशों की और पता नहीं क्या क्या, वो इंतहाई मायूब चीज है। मेरा ख्याल है कि ये इस पे शर्मिंदा होना चाहिए लोगों को, और फख्र बढ़ता जा रहा है। अब तो हर दूसरा बंदा ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे हमारे बहन भाई हैं जिन बेचारों के पास खाने पीने का जो सामान है वो बड़ा मुख्तसर होता है, बड़ा सादा सा होता है। अल्लाह ताला सबको हर एक की ख्वाहिश के मुताबिक दे और अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुशियां दे लोगों को। अपनी खुशियों को इस तरह सेलिब्रेट ना करें कि दूसरों के दिल टूटे या दूसरों के दिल दुखे या दूसरे बेचारे जो हैं उनको मायूसी फील हो। जी बिल्कुल। जो हमारे माशरे की मजबूरी माली हैसियत है उसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जो डिशेस से भरी हुई टेबल इटसेल्फ है वो हमारे लिए किसी ना किसी तौर पर भी शर्मिंदगी का बायस है। चाहे जाए कि उसका इजहार करना, इजहार से पहले टेबल का भरा हुआ होना ही हमारे लिए कहीं ना कहीं पे शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जबकि बार बार फिक्रा कहा जाता है कि गुर्बत की लकीर के नीचे लोग बड़े, फिर ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं। हाँ, सबको पता है कि हमारे यहाँ बेशुमार लोग बेचारे गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा जी, एक और जो बात तहजीबी, वो भी पूरी दुनिया में अब हमारी मशहूर होती जा रही है। ये जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, ये रमजान के महीने में जो चीजों के भाव ताव बढ़ाते हैं, बिल्कुल ये अब बाकायदा पूरी दुनिया में, गोरों में, दूसरे मज़ाहब के लोगों में ये बाकायदा मशहूर होता जा रहा है। हाँ जी, सॉरी, ये कोरोना में भी बढ़ा दिया था, रमजान से पहले कोरोना में भी बढ़ा दिए रेट सारे। हाँ जी, हाँ जी। और ये पाकिस्तान का है, ये हमारे वतन का, हमारे मुल्क का है ये अलमिया,
کہ یہاں پہ اب باقاعدہ دکاندار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں رمضان سے پہلے کہ بی بی جی پاجی لے لو سودا جنہ لینا جی پھر پہلے روزے تو یہ ریٹ نہیں جی نہیں ہونا. ہونا بالکل. یار یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں جی ہاں عزیزی رمضان شریف میں نیکیاں اکٹھیاں کرنی چاہیے, لوگ پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیتے. اور کوئی باز آ ہی نہیں رہا. دیکھو نا سب سے بڑا جو المیہ اس کرونے میں نظر آیا ہے, ہمیں ویسے تو ہم بڑا بنتے ہیں نیک. اب سوشل میڈیا دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا کہ سارا ساڈا پاکستان جڑا نا اودے چ یا قائد اعظم دے بچے رہندے نے یا علامہ اقبال دے رہندے نے, ہور کو ہے ہی نہیں, دو ہی فیملیاں نے. اتنے پیارے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو حالت یہ ہے کہ جو 10-15 روپے کا ماسک تھا وہ سینکڑوں میں چلا گیا, جو سینیٹائزر چند روپوں کا تھا وہ سینکڑوں میں چلا گیا. کیوں کہ کرونا پھیل گیا ہے. بچو ہاں کرونے کو لوگ میں بچو گے, اسی تو نہیں بچن دینا. اور پتہ نہیں کس طرح کس جگرے کے ساتھ کس دل کے ساتھ لوگوں نے لوٹ مار کی ہے اور اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کی ہے اور اس طرح کی بلیک میلنگ کی ہے کہ باخدا ساری دنیا میں شرمندہ کرا کے رکھ. بالکل. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھیں, کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے. یہی تو میں تمہیں شروع سے کہتا ہوں, تم میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.